respect to your breath, then this breath will lead you up to Supreme Cause. This is called Pranopasana. Realize that Supreme Cause through your breath. As you know, we are alive due to our breath. When this breath will stop, automatically life will be no more in this body. So, when you are concentrating on the breath, you are doing very great practice. And if you are reciting your mantra with breath, that is more important process. Breath is the manifested form of apas. Sound, vak is the manifested form of teja, fire, light, and mind is the manifested form of anna, food. In Upanishad, from Supreme Cause, three powers manifested: Tej, Apa, Anna. Tej become cause of sound, Apas become cause of breath, and Anna become cause of mind. All these three are projection of one Supreme Cause. It was described into Chandogya Upanishad in very vivid form. So, when you are giving attention on your breath, relating your mind with breath, and creating holy sound with breath, then your approach is perfectly correct. Tej Apa Anna, it means sound, mind and breath are projection of one Supreme Cause. And this inverse is only manifested form of all these three. Tej, Apa, Anna. In Sankhya philosophy, these three are accepted as a Sato Guna, Rajo Guna, Tamo Guna. So, here, Sato Guna, Tamo Guna, Rajo Guna means light, movement and stability. Cause of your stability is Tamoguna. Movement of your life is Rajoguna. And light and knowledge in your life is the impact of Satoguna, according to Sankhya philosophy. So, when you are using sound, mind and breath in your practice, it means perfectly
you are approaching your supreme cause. So this is very great and very good method. But be aware always about meaning of that sound. Meaning of that sound is supreme cause. And when you will be fully aware about that cause, then you will be practitioner of Maha Yoga, as one day I indicated. Maha Yoga is a very great process. 4 kinds of yogas are included into Maha Yoga: breath, mind, sound, and your wisdom too. Be aware about meaning of that sound. That awareness is related with your wisdom, your intellect. So when you will do this practice in this way, but that day will come in your own life, in your present life, when you will realize truth. Okay? So, may God bless you all. Now I am going to explain 15th chapter of Bhagavad Gita, the 6th and 7th shloka. मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल आप लोगों को ये बात समझाई गई थी, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम धाम को खोजने की बात भगवान ने 4थे श्लोक में कही थी, जिस परम पद को प्राप्त करने वाले के लक्षण की व्याख्या 5वें श्लोक में की गई, उस परम धाम के विषय में प्रभु ने बताया कि उसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र प्रकाशित नहीं करता, ये अग्नि प्रकाशित नहीं करती, और वहां जाकर पुनः इस संसार में लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा परम धाम। ये परम धाम की व्याख्या भगवान ने की। इसके विषय में उपनिषदों ने भयात् तस्य अग्निस्तपति भयात् तपः सूर्यो भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावत् पंचम। ये सूर्य में प्रकाश जो है वह उसका दिया हुआ है, अग्नि में तेज जो है यह उसका दिया हुआ है, और जो विद्युत की चमक है ये भी उसकी देन है, और जो वायु में प्रकाश और गति है ये भी उसकी देन है। संपूर्ण ज्योतियों का वह ज्योति है, संपूर्ण प्रकाशकों का वह प्रकाश है। इसलिए ये जो संसार में प्रकाश प्रदान करने वाले तत्व हैं, ये उस परम तत्व को प्रकाशित नहीं करते। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। श्रुति कहती है कि उस परम तत्व को, उस परमेश्वर को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, तो इस अग्नि की क्या विशात है? ये तो मर्त है, यानी जलती और बुझती है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाश से ही ये सारे प्रकाशमय तत्व प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी की ज्योति इन सब के माध्यम से प्रकाशित हो रही है। ये वेद की घोषणा है।
इसलिए उस परम पद को सूर्य चंद्र पावक प्रकाशित नहीं करते। एक दूसरा अर्थ भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्य का अंश आपका नेत्र है, चंद्रमा का अंश आपका मन है, अग्नि का अंश आपकी वाणी है। ये मन, वाणी और नेत्र उस आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि ये सब उससे प्रकाशित होते हैं। ये मनसान मनते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम उपास्ते। जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, मन जिससे मनन करने की सामर्थ्य पाता है, वह ब्रह्म है। जिसको तुम इदम कह करके संकेत करते हो, वो ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, ऐसा सत्य की घोषणा है। तो यहां पर भगवान ने बताया यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर, जिसको प्राप्त करके पुनः इस संसार में नहीं आना होता, वो मेरा परम धाम है। जिसको जानकर पुनः मोह में आप नहीं पड़ते। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, भगवान क्या कहते हैं, जिसको जान करके पुनः तुम इस प्रकार से मोह दलदल में नहीं पड़ोगे। हे अर्जुन, जिस आत्म तत्व को जान करके पुनः तुम इस मोह दलदल में नहीं पड़ोगे, वह परम तत्व है। और उसी बात को भगवान ने यहां पर कहा यद गत्वा। यह गत्वा जो शब्द है, ये ज्ञात्वा के अर्थ में, जानने के अर्थ में है। न निवर्तन्ते, पुनः इस संसार बंधन में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान कहते हैं तब धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, भगवान का श्रेष्ठतम निवास स्थान है। वो है क्या? आपकी आत्मा। अब उसी आत्मा के विषय में आगे भगवान कहते हैं कि वो जो मेरा परम धाम है, वो मेरे से भिन्न नहीं है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यह सनातनः जीवभूत जीवलोके ममैवांशो, मम एव अंशः। इस जीवलोक में, जीवलोक माने जहां प्राणी जगत है, विश्व जगत है, भूत जगत है, इसमें जो जीव तत्व है वो मेरा सनातन अंश है। सनातन माने नित्य अंश है, अभिन्न अंश है, अविनाशी अंश है। सनातन किसे कहते हैं? सनातनम एनम आहु रसाद्य स्यात् पुनर्नवः। जो नित्य नवीन है उसे सनातन कहते हैं। सनातन माने पुराना नहीं होता, पुराना का अर्थ यही होता है, पुनः नव, पुराना। तो वह मेरा सनातन, चिरंतन, नित्य नवीन अंश है, प्रकाश है, अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। वो मेरे से भिन्न नहीं है। जो मेरे से भिन्न नहीं है वो मुझे प्राप्त करके पुनः इस संसार प्रवाह में नहीं आता। तो बताया कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कल मैंने ये समझाया था कि अंश माने टुकड़ा नहीं होता, अंश माने अभिव्यक्ति। जैसे वेद में 3 प्रमाण दिए गए, इसके 4 प्रमाण हैं, 4 प्रमाण इसके दिए गए हैं। और उन चारों प्रमाणों से यही बात सिद्ध होती है कि एक ही तत्व विभिन्न रूपों में जब अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है, तो उसको अंश कहते हैं। एक मंत्र में बताया अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। जैसे एक ही अग्नि एक ही समय में अनंत रूपों में, अनंत स्थानों पर प्रकट हो जाता है, उसी रूप से एक ही आत्म तत्व एक ही साथ अनंत स्थानों पर, अनंत चित्तों में प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जैसे अग्नि अनंत स्थानों पर प्रकट होने पर अपनी व्यापकता खो नहीं देता, उसकी व्यापकता बनी रहती है, उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। इसी रूप से परमात्मा
जब अनंत रूपों में प्रकट हो जाता है तो उसकी व्यापकता में अंतर नहीं आता, उसकी व्यापकता ज्यों की त्यों बनी रहती है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि जिन आचार्यों ने परमात्मा की व्यापकता के भंग होने के भय से परमात्मा के अवतरण को स्वीकार नहीं किया, उनकी समझ में यह मंत्र क्यों नहीं आया? तो बड़ी सरल बात थी। उनको भय क्या हुआ? परमात्मा का यदि अवतार मान लेंगे तो उसकी व्यापकता का क्या बनेगा, ये उनको भय था। इसलिए वो कहते हैं परमात्मा का अवतार नहीं होता, क्योंकि परमात्मा यदि राम रूप में अवतरित हो गया तो उसकी व्यापकता क्या बना, फिर तो वो गणकण में व्याप्त नहीं रहा। और वेद कहता है परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तो जो सब जगह व्याप्त है वो एक रूप में कैसे प्रकट हो सकता है? भाई वेद कहता है अजाय मानो बहुधा विजायते, वह अजन्मा अनेक रूपों में जन्मता है। इसका अभिप्राय क्या? स एव जाता स जनिष्यमान, वही पैदा हुआ है वही आगे पैदा होगा। इसका अभिप्राय क्या होगा? अभिप्राय यह है कि जैसे अग्नि एक साथ अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी अपनी व्यापकता से अवरुद्ध नहीं होती, अग्नि की व्यापकता का कोई अंतर नहीं पड़ता, उसकी व्यापकता कहीं नहीं जाती, व्यापक तो बनी रहती है। इसी रूप से वह परमात्मा जो अग्नि का भी अग्नि है, अग्नि का भी प्रकाशक है, भला उसकी व्यापकता कैसे चली जाएगी? फिर दूसरे मंत्र में बात समझाई गई, वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्ट रूपम रूपम प्रभुत्रूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक ही वायु सबके नासिका छिद्रों के द्वारा लंग्स में जाकर के प्राण की क्रिया करने वाला एक ही वायु सभी को जीवन दे रहा है, लेकिन उस वायु की व्यापकता में कोई अंतर नहीं आया। तो जैसे सबके प्राण रूप में प्रकट होने पर भी वायु की व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता, इसी रूप से एक ही परमात्मा अनंत प्राणियों के चिदाकाश में, जिसे हम ब्रह्म चक्र कहते हैं, उसमें प्रकट होने पर उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। ये दूसरा उदाहरण दिया गया। जब आप गुब्बारे में वायु को भर लेते हैं तो क्या आप वायु की गति को अवरुद्ध कर देते हैं क्या? तो गुब्बारे में वायु नहीं है तो वहां है कौन? है तो वायु। लेकिन वो वायु जो गुब्बारे में भरा हुआ है, क्या वो व्यापक वायु से अलग है? इसी रूप से जैसे वायु की व्यापकता गुब्बारे में भर लेने से नहीं खत्म हो जाती, अनेक रूपों में वायु के अभिव्यक्त होने पर भी उसकी व्यापकता बनी रहती है, इसी रूप से परमात्मा का अनंत रूपों में प्राकट्य होने पर भी उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। ये दूसरा उदाहरण दिया। तीसरा उदाहरण दिया, सूर्यो यथैको भुवनस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः। अब यहां पर तीसरा उदाहरण और मजेदार है। कहा यदि परमात्मा पे मान लिया जाए कि वो शरीर के माध्यम से प्रकट हो गया तो शरीर के दोषों से वो लिपायमान हो जाएगा, क्योंकि जिसमें प्रकट होगा उसके कुछ तो दोष गुण उसके साथ लगेंगे। तो उपनिषद कहती है नहीं, ये तुम्हारी समझ गलत है। सूर्यो यथैको भुवनस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः। कहा जैसे दुनिया में जितने कीट पतंग आदि प्राणी हैं, पशु पक्षी मनुष्य आदि लेकर के, सभी के नेत्रों को ज्योति देने का काम सूर्य करता है। सूर्य ही समस्त प्राणियों के नेत्र की ज्योति है, ये वेद कहता है। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यदि सूर्य न हो तो यहां नेत्र नहीं हो सकता, प्रकाश नहीं हो सकता। घोर अंधेरे में तो आपके आंख रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, तो नेत्र कहाँ है? नेत्र तो प्रकाश का ही नाम है, प्रकाश का ही अंश है।
तो सूर्यो यथैको भुवनस्य चक्षु, जैसे संपूर्ण भुवन के प्राणियों का नेत्र सूर्य है, लेकिन यदि आंख में पीलिया हो जाए तो सूर्य को पीलिया नहीं होती, क्यों हो जाती है? आंख के दोष से सूर्य आबद्ध नहीं होता, आंख में रोग होने पर सूर्य को रोग नहीं होता। आंख यदि बुरी दृष्टि से बुरे चित्र को देखता है, दृश्य को देखता है, तो उससे सूर्य दोषी नहीं होता। आंख की गतिविधियों का उत्तरदायित्व तो सूर्य पर नहीं है, लेकिन सूर्य से ही आंख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी रूप से वह परमात्मा अनंत रूपों में, अनंत जीवों के रूप में प्रकट होने पर, अनंत चित्तों का स्वामी होने पर, अनंत चित्तों का प्रकाशक होने पर भी चित्त के दोष से आबद्ध नहीं होता। न लिप्यते चक्षुषैर बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतात्मा न लिप्यते बाह्य दुखेन। उसी प्रकार से वह एक ही आत्मा सबके चित्त में विराजमान है, लेकिन किसी के दुख से वो संबंधित नहीं होता, किसी के दुख से वो लिपायमान नहीं होता। ये तीन उदाहरण के पश्चात एक चौथा उदाहरण दिया गया है। वह उदाहरण है यथा, जैसे ये आकाश, चौथा उदाहरण आकाश का है। जैसे आकाश घटाकाश, मठाकाश, महाकाश तीन नामों से कहा जाता है, लेकिन आकाश एक है, उसी प्रकार से वह आत्मा एक है, वही जीव, ईश्वर और परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। ये चार उदाहरण वेद में आत्मा के संबंध में दिया गया है, और यह समझाया गया है कि वह व्यापक होकर के भी एक देशी वत प्रतीत होता है, और एक देशी होकर के भी उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। इसी बात को भगवान ने यहां बताया, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जो सनातन जीव है इस मृतलोक में, जीवलोक में, वह मेरा अंश है। मेरा अंश माने क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जैसा कि तेरे हमें अध्याय में बताया कि संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ माने वही जीवात्मा, क्षेत्र माने चित्त। तो समस्त चित्तों में चेतन स्वरूप में प्रकाशित मुझे ही जान तू, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम एतस् ज्ञातम ज्ञानम मत मम, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान ही मेरे विचार से सत्य ज्ञान है। इसी बात को पतंजलि महर्षि ने अपने दर्शन शास्त्र में कहा, चित चितेर न तृतीय। चित और अचित, इनके सिवा और कोई तीसरा तत्व तो नहीं है। चित में, अचित में चित्त का प्रकाश है। अचित माने एनर्जी, जिसको मैं कहता हूं ऊर्जा, प्रकृति, और चित माने चेतन, स्पिरिट जिसे कहा जाता है। और इनके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। सत्व पुरुषयो हो शुद्धि साम्य कैवल्यम। जब यथार्थ रूप से चित्त और चेतन का बोध हो जाता है, सत्व माने चित्त और पुरुष माने चेतन, इन दोनों की शुद्धि जब यथार्थ रूप से हो जाती है, समझ में आ जाता है, तो उसे मोक्ष कहते हैं। शुद्धि साम्य कैवल्य। तो यहां पर भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जो जीवलोक में जीव भाव को प्राप्त हुआ है, यह मेरा सनातन अंश है, मेरा ही सनातन प्रकाश है। ये सनातन है, अविनाशी है, अक्षय है, ये नाशवान नहीं है। लेकिन आपका अविनाशी अंश अभिव्यक्त हुआ, इस संसार में कैसे गति करता है, कैसे कार्य करता है। तो भगवान कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। वो कहते हैं कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि, इसके कार्य करने का एक बड़ा विचित्र
स्वरूप है। वह स्वरूप क्या है? प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित जो मन सहित 6 इंद्रियां हैं उनको ये आकर्षित करता है। जहां प्रकट होता है वहां इनको आकर्षित कर लेता है। चित्त में जहां चेतन का प्रकाश हुआ वहां मन सहित ये 6 इंद्रियां उसके साथ लग जाती है। 6 इंद्रियां कौन है? 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, क्योंकि सारी गतिविधि इन्हीं से चलती है। 5 कर्म इंद्रियां तो उसके सबॉर्डिनेट है, पीछे पीछे चलने वाली। इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इनका मालिक है मन, इसलिए मन भी इंद्रिय है। 11 इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियों को लेकर के इंद्रियां 11 हो जाती है। इंद्रियाणी दशैकम च, 13वें अध्याय में भगवान ने बताया कि 11 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 अंतर इंद्रिय मन है। इन 11 इंद्रियों में 5 तो कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां पीछे चलती है, उनमें अपनी गति नहीं, यानी अपनी दृष्टि नहीं है। जैसे पांव में कोई देखने की सामर्थ्य नहीं है, देखने की सामर्थ्य तो आंख में है। आंख रास्ता दिखावे तो पांव चलता है, यदि आंख रास्ता न दिखावे तो पांव नहीं चल सकता। कहा जब अंधेरा हो जाता है तो आंख तो नहीं देखती, तब कौन देखता है? पांव देखता। का पांव नहीं देखता, मन देखता है पांव से। उसमें मन में इतनी सामर्थ्य है कि वो कर्म इंद्रियों को भी कभी कभी ज्ञान इंद्रिय के रूप में प्रयुक्त करता है। ये मन की सामर्थ्य है। तो यहां पर 5 ज्ञान इंद्रियों की प्रधानता भगवान ने बताई, क्योंकि संसार में ग्रहण करने वाले केवल 5 ही प्रकार के विषय हैं। विषयों को कैटेगराइज किया गया, इनकी यानी एक प्रकार से स्तर बनाया गया, विभाग बनाया गया, और 5 विभागों में सारे विषयों को बांट दिया गया। शब्द, अब शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं कल्पना कीजिए आप। समग्र शब्दों को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। पहले एक तो वह जो कर्ण प्रिय है, एक वह जो अप्रिय है, प्रिय और अप्रिय। फिर उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, सार्थक और निरर्थक। कुछ तो सार्थक शब्द है, कुछ निरर्थक शब्द हैं। सार्थक माने जिसका अर्थ है, मीनिंग है। निरर्थक माने जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अब इसमें मतभेद है। आचार्यों ने कहा कि शब्द जो है वो सार्थक ही है, निरर्थक कोई शब्द नहीं है। कुछ आचार्यों ने अर्थ शब्द को कुछ निरर्थक भी माना है, सार्थक भी माना है। लेकिन दूसरा आचार्य कहता है कि नहीं, जिसको तुम निरर्थक कह रहे हो उसका भी अर्थ है, लेकिन अंतर इतना है कि उसका अर्थ तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो जो समझ में नहीं आया वो निरर्थक हो गया, और जो समझ में आ गया वो सार्थक हो गया। तो अर्थ तो समझने के ऊपर निर्भर करता है। अच्छी से अच्छी भाषा का शब्द हो, यदि अर्थ नहीं आता तुम्हारे लिए, वो तो अर्थहीन है, निरर्थक है, कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। इतना तो समझ रहे हो कि शब्द है, लेकिन क्या कहा जा रहा है ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हारे लिए निरर्थक है वो। तो समझ में आ जाए वो सार्थक, नहीं समझ में आवे तो निरर्थक। तो सारे शब्दों को एक श्रेणी में ले आए। शब्द कई प्रकार के हैं, उन समस्त शब्दों को एक श्रेणी में बांधा। क्यों? कि समस्त प्रकार के शब्दों को सुनने के लिए केवल कान के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं है। इंद्रियां केवल 5 हैं ज्ञान, इसलिए इनके सिवा कोई साधन नहीं है उन विषयों को ग्रहण करने का। किसी भी प्रकार का शब्द हो, उत्तम शब्द हो, मध्यम शब्द हो, नीच शब्द हो, निकृष्ट शब्द हो, उसको कान नहीं सुनेगा। भद्र शब्द हो, अभद्र शब्द हो, कान नहीं सुनेगा उसे। इसलिए शब्द को एक कैटेगरी बना दिया गया, विषय शब्द है और